Bismillahirrahmanirrahim. It's botany A paper for the class 4th year, diversity of plants. So the topic which we start today, that is about the bryophytes. It is the journal introduction, and after that you have to study about the types of the bryophytes. So first of all we have to define the bryophytes, that what are the bryophytes. So we have to define them as it is a group of plants in which the plant body is simple, flat, thallus, and it is in the process of the developing. It resembles to the thallophyta. And then sex organs are multicellular, and each sex organ is protected by an outer wall of the sterile cells. That is the definition. So if we have seen towards the principal phases, and these are the two principal phases, that are the gametophyte and the sporophyte plant body. So general account of the bryophytes, if we have to start about them, then first of all you have to tell about the habitat, that is the humid and the shady places, and tropical and subtropical regions. If we have to mention some of the types, then the Riccia, and then Markentia, Anthoceros and Funaria are the common types which are found. So water is the requirement for the life or for the cycle of the reproductive cycle. So these are also known as the amphibians of the plant kingdom. So if we have seen towards the plant body, it has two main types of the plant bodies. First one is the gametophyte, and the second one is the sporophyte generation. So we have seen both of these phases of the life. So gametophyte is mostly in the thallus form, while the sporophyte plant body is differentiated into the foot, seta and the capsule. And if we have seen towards the reproduction, so all the methods which are vegetative, sexual and asexual, they are found in the bryophytes, which we further study when we have to study about their types. So after that, in the asexual mode of reproduction, they show the formation of the spores, and then we have seen towards the vegetative reproduction, that is by the fragmentation and through the gamma cups. In the sexual reproduction, we have seen it is the oogamous type, and in this we have seen the gametes are small and motile, male gametes, while the female gamete is large and non-motile. Sex organs are Amphidia and Archegonia, and all the students know about these sex organs. You have studied them from in the previous classes also. Further we have see their structures, and the method of fertilization, if we have seen, then water is essential for the fertilization, as the male sex organs forms the sperms, and these sperms, after the rupturing of the wall of the spermatozoid of this male's reproductive structure, sperms are released, and then they have fertilized the egg, and then that egg, when it starts the repeated division, it forms the embryo, and then embryo will develop into the new plant body. And then asexual method of reproduction. So in that asexual method of reproduction, sporogonium that plays a main role. And if we have seen towards the sporophyte plant body, it consists of a foot, seta and the capsule. In the capsule, specific type of the cells which are called as the spore mother cells, they are found. Spore mother cells, after the meiosis, forms the tetrad of the spores, and then each spore will be developed into the new gametophyte. At the time of the germination of the spores, what will be happen? The spore will be form a undifferentiated type of the structure, that is called as the protonema, and then protonema develop into the new plant body. Alternation of generation is an important character of the bryophytes. Sporophyte will form gametophyte, and gametophyte will form sporophyte. That is known as alternation of generation. And after that, we have to discuss about the economic and ecological importance of the bryophytes. So the role they play, that is, first of all, bryophytes form the peat. And what is the peat? It is a brown or the dark colored spongy matter produced as a result of the partial decay of the dead organic matter in the box. And the second role it plays, that is soil conservation, where the bryophytes grow, they conserve the soil or prevent the soil from its erosion, and then they also play the role in the soil development. Then they have the roles as rock builders. And pollution indicators, wherever the pollution is found, that at that place bryophytes can't be found abundantly. And then medicinal use of the bryophyte is also found, that they are some of the medicines which are
formed from them. For example, Marketia polymorpha, Anthocyrus, Riccia, and Polytrichum species, they are reported to have the medicinal properties, and they are used as anti-tumor to cure pulmonary tuberculosis and affliction of the liver. Similarly, Polytrichum is also used to dissolve the stones of the kidney and gallbladder. And the next one is bryophyte as source of antibiotics. There are some type of the bryophytes which are acting as the active source of antibiotics, and these are the sphagnum, straticum, and then some of the other examples are also there. Bryophytes are experimental tools also. There are some of the research which in which the liverworts are, or mosses are used as experimental tools, and the bryophytes as source of food are also used as a source of food. Sphagnum is also used as a famine food in China. That's it. That is the main account of the bryophytes, and after that we have to start about the three main types of the bryophytes that we have to study with their complete life cycle. So it will be the next one. Thanks. Bismillahirrahmanirrahim. Students, the topic which we discussed today, that is about the enzyme. So when we have to discuss about the enzyme, we should first of all define it. The definition of enzyme is it is a partially or wholly a protein that can tremendously increase the efficiency of a reaction and is specific for that reaction. So अगर हम इस word की derivation देखें तो it is derived from a Greek word. En means insight and zyme means living, and it was first discovered by the W. Cohen in 1878. After that, if we have seen towards the nature of the enzyme, that's what physical properties enzymes show, because they are known as also as the biological catalyst. The enzymes are very specific in their functioning. So if we have enlist the properties, first of all we have to mention about the molecular weight, that the enzymes molecules have the high molecular weight. For example, the peroxidase are the smallest one, has a molecular weight of 40,000, whereas the catalase are the largest one, which has a molecular weight of 290,000 approximately. And if we have seen towards their nature, they are colloidal in their nature, and they form the colloidal suspension in the cytosol. And then if we have seen that in what concentration they are functional, so they are required very small amount to turn over the large number of the content reactants into the product. Then if we have seen towards the amount at the end of the reaction, so the amount of the enzymes are, or as such their chemistry also remains unchanged at the end of the reaction. Enzymes speed up the reaction at an equilibrium position is reached, and it catalyzes the rate of both the forward and the backward reaction. Not only in the forward reaction direction, but also in the forward direction. So enzymes also lower the activation in energy. Then the next point is their specificity, that enzymes are very specific. Specific means that a specific group of enzymes only at a specific type of the substrate. For example, जो enzymes proteins पे काम करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स पे काम नहीं करेंगे, जो कार्बोहाइड्रेट्स पे काम करेंगे वो लिपिड्स पे काम नहीं करेंगे. देन एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाते हैं अगर स्लाइट चेंज आ जाता है, जो कंडीशन उनके लिए फेवरेबल है उन पे अगर चेंज आ जाता है. इन द ऑक्सीडो रिडक्टेज है, एज द नेम इंडिकेट कि वो एंजाइम्स होंगे जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रोसेस को मॉनिटर करते हैं या उसमें इन्वॉल्व होते हैं. तो फर्स्ट वन इज द डीहाइड्रोजिनेजेस, जो इन्वॉल्व होते हैं द ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन में, और सेकंड कैटेगरी है रिडक्टेजेस की विच ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन ऑक्सीडेज, और उसमें फिर सेकंड कैटेगरी आ जाती है ट्रांसफिरेजेस. अब ये वो एंजाइम्स हैं जो कैटालाइज करते हैं ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप फ्रॉम अ डोनर मॉलिक्यूल टू एन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल. दिस ग्रुप मे बी मिथाइल, एसाइल, अमाइनो और फॉस्फेट. दिस ग्रुप ऑफ एंजाइम इज वेरी लार्ज एंड इंक्लूड्स एंजाइम्स सच एज ट्रांसग्लाइकोआइडेजेस, ट्रांसपेप्टाइडेजेस, ट्रांसअमाइनेजेस. जो ट्रांसफिरेजेस हैं वो हमारे पास हो सकते हैं ट्रांसअमाइनेजेस जो अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर करेंगे, फॉस्फोराइलेजेस जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को करेंगे, हाइड्रोलेजेस ये वो एंजाइम्स होंगे कि जो एडिशन करेंगे वाटर की अक्रॉस अ स्पेसिफिक बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट टू फॉर्म अ प्रोडक्ट.
अब हाइड्रोलेजेस जो हैं वो उसमें फर्दर अगर हम देखें फर्दर जो उसकी टाइप्स आती हैं उसमें प्रोटीनेजेस आते हैं, राइबोन्यूक्लियेजेस आते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेजेस आएंगे, लाइपेजेस आएंगे। ये सारी जो है फर्दर इसकी सब टाइप्स हैं हाइड्रोलेजेस की। देन उसके बाद लाइएजेस आ जाते हैं कि वो एंजाइम हैं कि जो नॉन हाइड्रोलाइटिक एडिशन या रिमूवल करते हैं ग्रुप की फ्रॉम द सबस्ट्रेट ड्यूरिंग द रिएक्शन। कार्बन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन सल्फर बॉन्ड जो है वो भी स्प्लिट होते हैं। इसमें भी फर्दर दो कैटेगरीज आ जाती हैं, एक डी कार्बोक्साइलेजेस है जो रिमूव करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, दूसरे कार्बोक्साइलेजेस हैं जो ऐड करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को। देन द नेक्स्ट वन इज द आइसोमेरेजेस। ये वो एंजाइम है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द इंट्रामोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट के लिए, कि एक आइसोमर जो है वो कन्वर्ट हो गया दूसरे आइसोमर में। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। उसके बाद आ जाते हैं कि लाइगेजेस। ये वो एंजाइम है जिसमें दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज्वाइन करते हैं बाय सिंथेसिस ऑफ अ न्यू कार्बन कार्बन और कार्बन नाइट्रोजन या कार्बन ऑक्सीजन या कार्बन सल्फर बॉन्ड्स और यूज करते हैं एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ द एएमपी। These include synthetases and polymerases. And that's it for today. So today we have discussed about the enzymes and it is a full chapter, and whenever it comes in the exam it is a full question. Allah Hafiz. Pathway that they produce is causing production of the substrate to slow down or stop when there is sufficient amount. This is a form of negative feedback mechanism. यानी एक enzymatic reaction है, उस enzymatic reaction की product जो है अगर वो ज्यादा हो जाती है तो वो खुद ही itself as a inhibitor act करना शुरू कर देती है और जाके जहाँ पे वो जो first stage है वहाँ पर वो block कराती है उस reaction को। So enzymes that are subject to this form of regulation are often multimeric and they have allosteric binding sites for regulated substances. Their substrate, their velocity plots are not hyperpolar but sigmoidal. Okay, then we have to discuss about the nomenclature and classification of the enzyme. That is the important one. अब इसमें ये है कि इन 1961 एक सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर फॉर एंजाइम जो था उसको रिकमेंडेड किया गया था बाय कमीशन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। एंजाइम जो थे उनको 6 कैटेगरीज में या 6 ग्रुप्स में रखा गया था अकॉर्डिंग टू द जनरल टाइप ऑफ द रिएक्शन विच दे कैटालाइज। हर एंजाइम जो था उसको एक सिस्टमैटिक नेम दिया गया था एक्चुअली टू डिस्क्राइब द रिएक्शन इट कैटालाइजेस। जो कॉमन नेम्स एंजाइम के उसमें नेम जो था सबस्ट्रेट का उसको मेंशन किया जाता था या टाइप ऑफ रिएक्शन जिसको वो कैटेलाइज कर रहा है, उसके आखिर में सफिक्स एज ऐड किया जाता है। तो क्लासेस ऑफ एंजाइम्स को अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास जो मेजर क्लासेस आती हैं एंजाइम्स की बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ द रिएक्शन दे कैटेलाइज, उसमें फर्स्ट वन जो है ऑक्सीडो रिडक्टेज है। एज द नेम इंडिकेट कि वो एंजाइम्स होंगे जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रोसेस को मॉनिटर करते हैं या उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो फर्स्ट वन इज द डीहाइड्रोजिनेजेस जो इन्वॉल्व होते हैं द ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन में, और सेकेंड कैटेगरी है रिडक्टेजेस की विच ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन ऑक्सीडेज, और उसमें फिर सेकेंड कैटेगरी आ जाती है ट्रांसफिरेजेस। अब ये वो एंजाइम्स हैं जो कैटालाइज करते हैं ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप फ्रॉम अ डोनर मॉलिक्यूल टू एन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। दिस ग्रुप मे बी मिथाइल, एथाइल, अमाइनो और फॉस्फेट। दिस ग्रुप ऑफ एंजाइम इज वेरी लार्ज एंड इंक्लूड्स एंजाइम्स सच एज ट्रांसग्लाइकोआइडेजेस, ट्रांसपेप्टाइडेजेस, ट्रांसअमाइनेजेस। जो ट्रांसफिरेजेस हैं वो हमारे पास हो सकते हैं ट्रांसअमाइनेजेस जो अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर करेंगे, फॉस्फोराइलेजेस जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को करेंगे, that they cannot bind at the same time. Often competitive inhibitors strongly resemble to the real substrate of the enzyme. अब उसमें फॉर एग्जांपल मेथोट्रेक्सेट जो है वो कम्पिटिटिव इनहिबिटर है एंजाइम्स का डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज विच कैटालाइज द रिडक्शन ऑफ द डाइहाइड्रोफोलेट टू टेट्राहाइड्रोफोलेट। अब ये जो है द सिमिलैरिटी बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ द फोलिक एसिड एंड दिस ड्रग आर शोन दिस प्रीवियस फिगर। In the same time, the inhibitor can bind to a site other than the binding site of the usual substrate and exert an allosteric effect to change the shape of the usual binding site. उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है वो आ जाती है अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की। जो अनकम्पिटिटिव
इनहिबिटर्स होते हैं उनमें इनहिबिटर जो है वो बाइंड नहीं करता फ्री एंजाइम के साथ ओनली टू द ES कम्प्लेक्स। अब इसमें ES कम्प्लेक्स एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स के साथ EIS कम्प्लेक्स एंजाइम इनहिबिटर कम्प्लेक्स जो है वो बनता है एंड इन एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो इनएक्टिव हो जाता है। दिस टाइप ऑफ इनहिबिटर जो है वो हमें हम कह सकते हैं बहुत रेयर है बट मे अकर इन द मल्टीमेरिक एंजाइम। आफ्टर दैट नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं, ये दो ग्रुप है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स दैट कैन बाइंड टू द एंजाइम्स एट द बाइंडिंग साइट एट द सेम टाइम एज द सबस्ट्रेट बट नॉट टू द एक्टिव साइट। मतलब उसमें उसी एंजाइम के साथ इनहिबिशन जो है उसको क्रिएट करना है लेकिन वो एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड नहीं करेगा, अदर देन एक्टिव साइट जो है वो करेगा। इस सेक्शन के अंदर EI एंड EIS कम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो एंजाइमेटिकली इनएक्टिव होते हैं और बिकॉज द इनहिबिटर कैन नॉट बी ड्राइवन फ्रॉम द एंजाइम्स बाय हायर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बट बिकॉज द सबस्ट्रेट कैन स्टिल बाइंड टू द एंजाइम तो इसके अंदर जो है वो एक्टिविटी जो एंड प्रोडक्ट है वो डिस्टर्ब हो जाती है। मिक्स्ड इनहिबिटर जो होते हैं ये वो इनहिबिटर्स होते हैं, ये टाइप ऑफ इनहिबिशन होती है कि जो रिजेंबल करती है नॉन कम्पिटिटिव से एक्सेप्ट दैट EIS कम्प्लेक्स जो है हैज रेजिडुअल एंजाइमेटिक एक्टिविटी। दिस टाइप ऑफ इनहिबिटर डज नॉट फॉलो द एनी रूल जो हम E और S प्रोडक्ट के साथ देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपने आ जाना है नेक्स्ट वन दैट इज द feedback mechanism. In many organisms, inhibitors they may act as a part of the feedback mechanism. If an enzyme produces too much of one substrate in the organism, that substrate may act as an inhibitor for the enzyme. ये जो structure है किसी भी product का वो different है from that of the substrate and there will be no fit into the active site. उसमें according to this model जो active site है वो बड़ा rigid structure है जिसमें कभी भी change नहीं आएगा, ना बिफोर ना आफ्टर ना ही एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। तो ये जो था वो भी इतना इसका ड्रॉबैक था। उसके बाद एक ज़्यादा जो एक्सप्लेन करके स्ट्रक्चर को बताया गया 1973 में डेनियल E. कोशलैंड ने प्रपोज किया था कि एक्टिव साइट होती है एंजाइम की वो इनिशियली एग्जिस्ट करती है इन अ शेप जो कि कम्प्लीमेंट्री होती है सबस्ट्रेट के बट आर इंड्यूस्ड टू एज्यूम द कम्प्लीमेंट्री शेप एज द सबस्ट्रेट बिकम बाउंड। ये जो आइडिया है इज नाउ वाइडली नोन एज द इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस एंड इसके अकॉर्डिंगली जो कोशलैंड ने प्रपोज किया था एंजाइम्स एक्टिव साइट इज फ्लेक्सिबल। ये एंजाइम की एक्टिव साइट होती है वो फ्लेक्सिबल होती है और एक्टिव साइट एंड सबस्ट्रेट जो है वो इनिशियली उनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं लेकिन जब वो कम्प्लीमेंट्री होते हैं, जब वो बाइंड करते हैं तो वो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होते हैं और ये शेप जो होती है वो कैटालिटिक रिएक्शन जो है उसको इंड्यूस करती है। सो अकॉर्डिंग टू दैट मॉडल अगेन फिर वही के E और S कम्प्लेक्स बनता है एंड जो है वो एंड प्रोडक्ट आ जाती है। ओके जी, देन द नेक्स्ट टॉपिक इज एंजाइम इनहिबिशन। इनहिबिटर का वर्ड हम जब भी पढ़ते हैं इट मीन्स वो किसी भी चीज को ब्लॉक कर देता है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो के इनहिबिटर जो होता है वो या तो रिजेंबल कर रहा है या उस एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड कर सकता है अपने आप को और वो आके उस एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देगा एंड एज अ रिजल्ट एंड प्रोडक्ट नहीं आएगी। तो इनहिबिटर कोई भी ऐसी चीज कोई भी ऐसा केमिकल हो सकता है कि जो आके एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर दे या एक्टिव साइट को इनएक्टिव कर दे फॉर द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम्स एंड एज अ रिजल्ट प्रोसेस जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो अब उसमें अगर हम देखें कि एंजाइम्स इनहिबिटर जो हैं वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं तो उसमें कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं, अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं एंड मिक्स्ड इनहिबिटर्स हैं। कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो होते हैं उनके अंदर इनहिबिटर और सबस्ट्रेट जो है वो compete करते हैं for the enzyme that they cannot bind at the same time. Often competitive inhibitors strongly resemble to the real substrate of the enzyme. अब उसमें for example methotrexate जो है वो competitive inhibitor है enzymes का dihydrofolate reductase which catalyze the reduction of the dihydrofolate to tetrahydrofolate. अब वो फैक्टर एंजाइम और कोफैक्टर का जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको हम होलो एंजाइम कहते हैं और उसके बाद जो पार्ट होता है एंजाइम विदाउट कोफैक्टर उसको हम एपो एंजाइम का नाम देते हैं। एपो एंजाइम जो है वो सिर्फ प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम होता है। प्रोटीन ऑफ एंजाइम जो है उसमें नियर अबाउट 10 से लेके 100 तक जो है वो न्यूक्लियोटाइड की चेन जो पॉलीपेप्टाइड का बेसिक यूनिट है उसकी चेन आ सकती है। अच्छा, उसके बाद
नेक्स्ट आ जाते हैं कोएंजाइम की डेफिनेशन को। उसमें हम बहुत सारे एंजाइम जो हैं वो उनके अंदर प्रोस्टैटिक ग्रुप नहीं होता, बल्कि उनको रिक्वायर होता है एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड अपनी एक्टिविटी के लिए, और ये जो कंपाउंड होते हैं उनको कोएंजाइम्स कहते हैं। अब इसमें एग्जांपल्स में हम आपके पास कोएंजाइम्स में आ सकती हैं NAD की, NADP की। देन उसके बाद इनऑर्गेनिक आइंस और एंजाइम एक्टिवेटर्स भी होते हैं। कुछ एंजाइम जो होते हैं उनको इनऑर्गेनिक आइंस चाहिए होते हैं अपनी एफिशिएंट एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए, और उसमें जो है वो इंक्रीज कर देते हैं चांस एंड रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अमाइलेज की एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम आइंस, और दूसरे एक्टिवेटर्स हैं वो है मेटा आइंस सच एज जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर एंड आयरन। Then we have to discuss about the mechanism of the enzyme action. अगर mechanism देखें तो पहले हम देखते हैं कि इसमें हम जो टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सबस्ट्रेट की। सबस्ट्रेट क्या है? एनीथिंग ऑन विच द एंजाइम एक्ट दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। फॉर एग्जांपल अगर सेलुलोज को ब्रेक डाउन करनी है बाय द एंजाइम सेलुलेज, तो सेलुलोज जो होगा वो उसमें सबस्ट्रेट होगा। एक्टिव साइट जो होती है किसी भी एंजाइम की, ये पूरे का पूरा एंजाइम जो है वो अटैच नहीं हो जाता, इसकी स्पेसिफिक साइट होती है जिसको हम एक्टिव साइट का नाम देते हैं, और ये कम्प्लेक्स होता है, 3 डायमेंशनल कैविटी होती है जिसके अंदर सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं वो फिट कर जाते हैं, और एक्टिव साइट जो एंजाइम की वो वर्क करती है बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एंजाइम जो है वो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं सबस्ट्रेट से, और सिर्फ एक स्मॉल पोर्शन जो होता है एंजाइम का बिटवीन 3 to 12 अमीनो एसिड वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है विद द सबस्ट्रेट और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के अंदर। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो काम किस तरह कर रहा है। तो एंजाइम जो है वो वर्क करते हैं बाय रिएक्टिंग विद द सबस्ट्रेट टू फॉर्म अ शॉर्ट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो होता है ये एक ट्रांजिशन फॉर्म है, ये आप समझ लें कि ये एंड प्रोडक्ट नहीं है, इसके बाद जो है वो एंड प्रोडक्ट बनती है और वो रिलीज होती है। तो ये जो ES कॉम्प्लेक्स होता है ये फॉर्म होता है एट द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, और ये ब्रेक डाउन हो जाता है टू फॉर्म द प्रोडक्ट एंड लीविंग द अनशन जो है ES की वो जो थी उसको सबसे पहले हाइपोथेसाइज किया था एमिल फिशर ने इन 1884 एंड ऑफर किया था उसकी एक्सप्लेनेशन को, जिसमें E plus S gives ES and E plus P, that E and P are the enzyme and the product. अच्छा, उसके बाद जो है वो काइनेटिक्स अगर हम देखें एंजाइम एक्शन की, तो उसमें जो है 2-3 वही पॉइंट्स जो पहले भी हमें पता है कि जब भी फॉर्मेशन होती है एंजाइम किसी भी एक रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है तो फॉर्मेशन हो जाती है एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जिसे हम ES कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। उसके बाद मॉडिफिकेशन होती है सबस्ट्रेट की और वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देता है या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देता है, वो कुछ अरसे के लिए remain associated with the enzyme, and after that the release of the product or the product from the enzyme. And the अगर हम देखें कि कौन से मॉडल्स एक्सप्लेन करते हैं एंजाइम एक्शन को, तो 2 ही मेन मॉडल हैं, जिसमें एक तो बड़ा फेमस भी है, दैट इज लॉक एंड की मॉडल या लॉक एंड की हाइपोथेसिस है। ये पहले प्रपोज किया गया था, और ये लॉक एंड की मॉडल जो है एंजाइम एक्शन का ये प्रपोज किया था एमिल फिशर ने। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो सबस्ट्रेट है उसमें पोलर पॉजिटिव या नेगेटिव एंड नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक रीजन होते हैं, एंड दैट इज अट्रैक्टेड एंड टू एंड एसोसिएट विद द एक्टिव साइट विच इज complementary in both shapes and charge distribution. Active sites of the enzymes can be compared to the key and substrate to a lock. As a specific key can open a specific lock, similarly a substrate having complementary shape and charge to the active site can fit into the active site and is catalyzed by the enzyme. The lock and key model for enzyme action accounts for enzyme specifically. उसके बाद जो था इसमें लॉक की हाइपोथेसिस जो था इसका ड्रॉबैक ये था कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो रिवर्सिबिलिटी है किसी भी रिएक्शन की वो नहीं हो सकती, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है किसी भी प्रोडक्ट का वो डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ द सबस्ट्रेट एंड देयर विल बी नो फिट इनटू द एक्टिव साइट। उसमें अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो एक्टिव साइट है वो बड़ा रिजिड स्ट्रक्चर है जिसमें कभी भी चेंज नहीं आएगा, ना बिफोर ना आफ्टर ना ही एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। तो ये जो था वो इतना इसका ड्रॉबैक था। उसके बाद इस ज़्यादा जो एक्सप्लेन करके स्ट्रक्चर को बताया गया 1973 में डेनियल ई कोशलैंड ने प्रपोज किया था कि एक्टिव साइट होती है एंजाइम की वो इनिशियली एग्जिस्ट करती है इन ए शेप जो कि कम्प्लीमेंट्री होती है सबस्ट्रेट के, बट आर इंड्यूस्ड टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो काम किस तरह कर रहा है। तो एंजाइम जो है वो वर्क करते हैं बाय रिएक्टिंग विद द सबस्ट्रेट to form a short-lived enzyme substrate complex,
और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है, ये एक ट्रांजिशन फॉर्म है, ये आप समझ लें कि ये उस एंड प्रोडक्ट नहीं है, इसके बाद जो है वो एंड प्रोडक्ट बनती है और वो रिलीज होती है। तो ये जो ES कॉम्प्लेक्स होता है ये फॉर्म होता है एज द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, और ये ब्रेक डाउन हो जाता है टू फॉर्म द प्रोडक्ट and leaving the unchanged enzyme molecule which is then available to catalyze and other substrate molecule. जो फॉर्मेशन है इसके अंदर एक्टिव साइट की फॉर्मेशन जो है ES की वो जो थी उसको सबसे पहले हाइपोथेसाइज किया था एमिल फिशर ने इन 1884 एंड ऑफर किया था उसकी एक्सप्लेनेशन को, जिसमें E plus S gives ES and E plus P, that E and P are the enzyme and the product. अच्छा, उसके बाद जो है वो काइनेटिक्स अगर हम देखें एंजाइम एक्शन की, तो उसमें जो है दो तीन वही पॉइंट्स जो पहले भी हमें पता है कि जब भी फॉर्मेशन होती है एंजाइम किसी भी एक रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है तो फॉर्मेशन हो जाती है एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जिसे हम ES कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। उसके बाद मॉडिफिकेशन होती है सबस्ट्रेट की और वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देता है या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देता है, तो कुछ अर्से के लिए remain associated with the enzyme and after that the release of the product or the product from the enzyme. And अगर हम देखिए कि कौन से मॉडल्स एक्सप्लेन करते हैं एंजाइम एक्शन को, तो दो ही मेन मॉडल हैं, जिसमें एक तो बड़ा फेमस भी है दैट लॉक एंड की मॉडल या लॉक एंड की हाइपोथेसिस है, ये पहले प्रपोज किया गया था। और ये लॉक एंड की मॉडल जो है एंजाइम एक्शन का ये प्रपोज किया था एमिल फिशर ने। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो सबस्ट्रेट है उसमें पोलर पॉजिटिव या नेगेटिव और नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक रीजन होते हैं एंड दैट इज अट्रैक्टेड एंड टू एंड एसोसिएट विद द एक्टिव साइट विच इज complementary in both shapes and charge distribution. Active sites of the enzymes can be compared to the key and substrate to a lock. As a specific key can open a specific lock, similarly a substrate having complementary shape and charge to the active site can fit into the active site and is catalyzed by the enzyme. The lock and key model for enzyme action accounts for enzyme specifically. उसके बाद जो था इसमें लॉक की हाइपोथेसिस जो था इसका ड्रॉबैक ये था कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो रिवर्सिबिलिटी है किसी भी रिएक्शन की वो नहीं हो सकती, क्योंकि